Hello students, a very good morning to one and all. In last class, we have covered the selection of material on the behalf of economic aspects and properties. प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, आप कह सकते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़. ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्कस किया था. उससे लास्ट क्लास में फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट मीन्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स में ही, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में ही मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था. उसकी कोडिंग के बारे में डिस्कस किया था. वेरियस स्टील्स के कोड्स हमने डिस्कस किए थे. ओके, इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरचेंजेबिलिटी. फिर से कह रहा हूँ, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, शॉर्ट नोट्स में हमेशा आते हैं. तो प्लीज़ अपना नोटबुक और पेन आप ज़रूर ले लें, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसे पॉइंट हों जो आपके इसमें पीडीएफ में ना हो. ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन इज डिफाइंड एज ऑब्लिगेटरी नॉर्म्स. ऑब्लिगेटरी नॉर्म्स की हिंदी मीनिंग बात करूँ, क्या बोलते हैं इसको? अनिवार्य मानदंड. ऑब्लिगेटरी नॉर्म्स मीन्स अनिवार्य मानदंड. मतलब दैट मीन्स कुछ जो रूल्स हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है, जो मानक सेट किए गए हैं, उनको फॉलो करना चाहिए. ओके, तो स्टैंडर्डाइजेशन इज डिफाइंड एज ऑब्लिगेटरी नॉर्म्स to which various characteristics of a product should conform. The characteristics include materials, dimensions, and shape of the component, method of testing, and method of making, packing, and storing of the product. Okay, that is known as standardization. In other word, if we define the standardization, then standardization is nothing but the process of establishing set of norms to which various characteristics of product should conform. Okay, now what are these various characteristics? Like dimensions, materials, they should all conform to set of norms. Okay, if they conform to set of norms, we can say that they are standardized. Surface finish, testing methods, okay, marketing methods, packing methods, storing methods, these all should conform with establishing set of norms. Okay, now let us start with the advantages of standardization. एडवांटेजेस क्या है? फिर से कह रहा हूँ, आप नोटबुक, कॉपी, पेन अपना ले लें. क्यों? क्योंकि ये हो सकता है ये पीडीएफ में ना हो. ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपका एडवांटेजेस आपके नहीं हैं इसमें, तो आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे. Okay, so let's start. There are various advantages of standardization, in which first one comes to that is interchangeability. First advantage of standardization is that we can get interchangeable parts. Interchangeable parts means if we take if we talk about piston cylinder assembly. If I randomly select a piston and randomly select a cylinder, and if they match and assembly happen successfully, then I can say that they are interchangeable parts. Okay, so interchangeable means a random selection of parts, and if they assemble properly, then we can say that there is successful interchangeable of parts. Okay, standardization gives us this advantage of interchangeability. Okay, now we talk about second advantage, that is nothing but reduced inventory of components. This one is the second advantage of standardization. कौन सा? reduced inventory of components. You can say that if you are using standard parts, then we don't need to store more parts as inventory into the industry. Okay, because standard parts are easily available in the market, so unnecessary storage of inventory of components will be reduced. ओके, इससे क्या होगी? आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी. क्लियर है? थर्ड एडवांटेज दैट improved quality. If you are following standardization, means you are planning, you are doing, you are checking, you are acting
according to that in a proper manner. If you are doing mean you are giving a quality product. If you follow standardization, improved quality of products can be achieved. Standard products of better quality produce. Okay, standardized products are better quality products. Okay, next one is improved reliability. Improved reliability, next advantage is improved reliability. Reliability means ability of material product to function for a longer amount of time. Okay, if you are following standardization, if standardized parts are manufactured, obviously they will be suitable, or you can say they will be reliable. Okay, they will function for a longer amount of time and will need less maintenance. Okay, next advantage is that easy and quick replacement of product. If we follow standardization, we can easily and quickly replacement. Okay, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सिलेंडर लाइनर. ओके, सिलेंडर लाइनर आपने शायद बीएमई लैब में आपने पढ़ा होगा. सिलेंडर लाइनर क्या होता है, जिसमें दैट मीन्स जहाँ पे आपका दैट मीन्स यदि पिस्टन जो कॉन्टीन्यूसली रेसिप्रोकेट करता है, सिलेंडर के अंदर मूव करता है, तो वो क्या होता है, काफ़ी हीटअप हो जाता है. ठीक है ना. तो उसमें जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस, जो थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, उसके कारण से वहाँ पे क्रैक आ सकते हैं. तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे सिलेंडर के बीच में, सिलेंडर और पिस्टन के बीच में वहाँ पे हम लोग सिलेंडर लाइनर का यूज़ करते हैं. और सिलेंडर लाइनर और सिलेंडर के बीच में हम लोग वाटर जैकेट का यूज़ करते हैं, जो कि प्रॉपर कूलिंग का काम करते हैं. ठीक है. तो पूरी आपका असेंबली, आपका सिलेंडर पिस्टन की असेंबली पूरी आपका ख़राब ना हो, पूरा आपको रिप्लेस ना करना पड़े, इसलिए खाली हम लोग सिलेंडर लाइनर का हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं. हालांकि वो क्या होता है, हाई ग्रेड मटेरियल का बनाया जाता है, बट जब आपका मान लिया उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो खाली आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं. पूरी आपका दैट मीन्स पूरी असेंबली को आपको वहाँ पे रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा. खाली आपको वहाँ पे सिलेंडर लाइनर को हटा करके आप दूसरा सिलेंडर लाइनर यूज़ कर लें. ठीक है ना. तो ये उसके बारे में बात किया जा रहा है. Okay, so cylinder liner usually do not have any maintenance procedure. They always have to be replaced if standard cylinder liner is used. Piston cylinder assembly, then quick and easy replacement of cylinder liners can take place. Okay, hence standardization as the benefit of ease and quick replacement of product. Okay, next one is, sixth one is ensure safety. Ensure safety. If you follow standardization, then obviously you are following the norms, the rules which are being mentioned. Okay, if you follow the rules, your products will be safe to use. The customer will feel safe using the products. Okay, thus standardization ensures safety. Okay, next advantage is reduces cost. Reduces cost. Standard products reduce cost. Unnecessary cost of maintenance, unnecessary other cost also reduces. If you are following the norms and making the procedure as per the norms, so you follow the standardization, means you are reducing the cost. Okay, next one is, next advantage is promotes mass production. लास्ट ये एडवांटेज है आपका, promotes mass production. Standardization promotes mass production. In fact the broad objective of standardization is to make the mass production of components easier. Mass production means more number of products in a day. Okay, if you are following standardized procedure, more number of products, mass production can take place. Okay, तो ये आपका एडवांटेज है आपका स्टैंडर्डाइजेशन के. यदि नाउ इफ़ यू आर टॉक अबाउट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स आर यूज, कौन कौन से आपका स्टैंडर्ड्स आपका यूज़ होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिज़ाइन में.
तो स्टैंडर्ड्स जिनमें से आपका स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड्स फॉर मटेरियल, दियर केमिकल कंपोजिशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड हीट ट्रीटमेंट। इनके बिहाफ पे आपने कोडिंग पढ़ रखा है, ये सारी चीज़ आपको दिखाई गई है ना। फॉर एग्जांपल इंडियन स्टैंडर्ड्स IS 210 specifies 7 grades of grey cast iron designated as FG 150, FG 200, FG 220, FG 260, FG 300, FG 350 एंड FG 400। यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे EF क्या आपका यहाँ पे जो भी ग्रेड दिखाया जा रहा है और उसके बाद जो न्यूमेरिक डिजिट दी है ये इसकी क्या शो करती है, इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को शो करती है। ओके, तो ये सारी चीज़ जैसे आपने स्टील में आपने डिज़ाइन किया था ना, डिजिग्नेटेड वहाँ पे दिखाया था, आपने कोडिंग दिखाई थी ना, तो यहाँ पे भी आपका दिखाया गया किसके लिए, आपका बेसिक कास्ट आयरन के लिए, ग्रे कास्ट आयरन के लिए। द नंबर इंडिकेट्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर एम स्क्वायर। IS 1574 जो कि आपका पार्ट 4 में यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, स्पेसिफाइज केमिकल कंपोजिशन ऑफ वेरियस रेट्स ऑफ एलॉय स्टील। ओके, फॉर एग्जांपल एलॉय स्टील डेजिग्नेटेड बाय 55 CR3। इसका मतलब क्या है, आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था। जैसे आपको 55 है, दैट मीन्स क्या है आपका 55 के यहाँ पे 100 टाइम्स रहता है, तो आपका जैसे ही आपका 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका एवरेज आता है। तो 50 और 60 का एवरेज रहता है, तो 0.5 टू 0.6% ऑफ कार्बन। ओके, उसके बाद क्या है आपका 0.10 टू 0.35 सिलिकॉन, 0.6 टू 0.8 मैग्नीज एंड 0.6 टू 0.8 क्रोमियम। ओके, तो इस तरीके से आप इसको दैट मीन्स ग्रेडिंग सिस्टम आप कर सकते हैं। ओके, सेकेंड वन इज standards for shape and dimensions of commonly used machine elements. Okay, the machine elements include bolts, screw and nuts, rivets, belts and chains, balls and roller bearing, wire ropes, keys and splines etc. For example, IS 2494 part 1 में आपका स्पेसिफाई किया गया है, इस पे जो डायमेंशंस एंड शेप्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ एंडलेस वी वेल्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन। अभी सारी चीज़ आपको पता है वी वेल्ड्स क्या होता है, आपने मैकेनिक्स में जो पावर ट्रांसमिशन आपने पढ़ा था तो उस टाइम पर आप जानते हैं कि वी वेल्ड क्या होता है, एंडलेस क्या होता है, ठीक है ना, किस मटेरियल से आपको बनाया जाता है ये, ठीक है ना, बेटा गम है आपका, कई सारी चीज़ें वहाँ पे हमने फाइबर्स का हमने यूज़ किया था, कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। द डायमेंशंस ऑफ द ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेल्ट वाया वेट हाइट एंड इंक्लूडेड एंगल आर स्पेसिफाइड in this standard. Okay, the dimensions of the rotary shaft oil seal units are given in the Indian standard 5129. Okay, these dimensions include inner and outer diameter and width of the oil seal units. दैट मीन जो डिफरेंट कंपोनेंट आपका यूज हो रहे हैं कहाँ पे, वो सारी चीज़ आपको डाटा बुक में यहाँ पे मिल जाती हैं। ओके, स्टैंडर्ड्स फॉर फिट्स टॉलरेंसेज एंड सरफेस फिनिश कंपोनेंट। ओके, तो ये आपका क्या बोलते हैं, फिट्स और टॉलरेंस के लिए हैं, सरफेस फिनिश मेजरमेंट के लिए हैं, ठीक है ना, जो आपका आगे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इस डिटेल में। लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस ये आपका नेक्स्ट जो आएगा वहाँ पे हम लोग इसका डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। दीज स्टैंडर्ड समटाइम्स कॉल्स कोड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। गिव द प्रोसीजर टू टेस्ट द प्रोडक्ट्स सच एज प्रेशर वेसल, बॉयलर, क्रेन एंड वायर रोप, where safety of the operator is an important consideration. For example, IS 807 is a code of practice for design, manufacture, erection and testing of cranes and hoists. Okay, the method of testing of pressure vessels is explained in 2825 on code for unfired pressure vessel. Okay, next one is standards for engineering drawing of components. For example, there is a special publications SP46 prepared by Bureau of Indian Standard, okay, BIS, on engineering drawing practice for schools and colleges, which covers all standard relating to engineering drawing. ये सारी चीज़ आपका वहाँ भी आपका जो डी ड्राइंग की बुक रहती है उसमें दिया रहता है। There are two words standard and code which are often used in standards. ओके, दो टर्म में हम लोग यूज़ करते हैं कि स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स मंगा दीजिए या कोड प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है ना। A standard is defined as a set of specification of parts, materials or processes. The objective of a standard is to reduce the variety and limit the number of items to a reasonable level. On the other hand, a code is defined as a set of specifications for the analysis, design, manufacture, testing and erection of the product. The purpose of a code is to achieve a specified level of safety. Okay, there are three types of standards used in design office. They are as follows. Okay,
फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ओके, तो ये आपका कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। ओके, ये आप सारी चीज़ आपका इनकी रीडिंग मार सकते हैं आप, यही ठीक है। टोटल थ्योरेटिकल पोर्शन है ये, ठीक है। कोई डाउट हो आप इसको पूछ सकते हैं। तो ये था आपका पूरा जो था स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं आपका इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में। ओके, इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी टर्म्स ज़्यादातर क्या होता है, इंटरचेंजेबल पार्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोई होल या शाफ्ट के लिए। और यह टर्म इंटरचेंजेबिलिटी ज़्यादातर यूज़ होता है वहाँ जहाँ पर आइटम्स का मास प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर आइडेंटिकल आइटम्स का मास प्रोडक्शन होता है और साइज़ बहुत मैटर रखता है। जैसे कि हम जानते हैं चाहे कितनी भी एक्यूरेसी से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जाए, ठीक है ना, दो पार्ट्स के डायमेंशंस दो पार्ट के डायमेंशंस कभी भी आपका सेम नहीं हो सकते, ठीक है। उन दोनों के साइज में कुछ ना कुछ वेरिएशन रहेगा ही रहेगा, और इन पार्ट्स में कुछ हद तक वेरिएशन एक्सेप्ट भी किया जाता है ताकि पार्ट्स असेंबली अच्छे से हो जाए, ताकि हम रैंडमली क्या बोलते हैं लॉट से पार्ट्स यूज़ कर सकें और प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाए। ओके, तो इंटरचेंजेबल पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए लिमिट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं असेंबली में आपका दो पार्ट से मिलकर बनी होती है या बनती है, जहाँ पर फर्स्ट पार्ट दूसरे पार्ट में इंटर करता है। इस पार्ट को हम साफ्ट या इन्वॉल्व्ड सर्फेस कहते हैं, जबकि जो दूसरा पार्ट होता है जिसे हम फर्स्ट पार्ट में इंटर कराते हैं, उसे हम होल या इन्वॉल्विंग सरफेस कहते हैं। ओके ना, तो ये टोटली आपका लिमिट सिस्टम पर बेस्ड रहता है इंटरचेंजेबिलिटी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिमिट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द लिमिट, फिट्स, टॉलरेंस के बारे में पढ़ेंगे, सरफेस मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आप यहाँ भी आप देख सकते हैं स्क्रीन में, द टर्म इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ साइजेस, जैसा कि मैंने बताया। ओके, a little consideration will show that in order to maintain the sizes of the part within a close degree of accuracy, a lot of time is required। वो आप जब कई बार आपका डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए तो आप पीसेज आप उठाते हैं, फिर देखते हैं, फिर चेंज करते हैं, तो उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम आपको वहाँ पे वेस्ट हो जाता है। बट इवन देन देयर विल बी स्मॉल वेरिएशन, उसके बाद भी आप देखते हैं कि कुछ कुछ चेंजेस जरूर रहते हैं। सेम आपका कंपोनेंट आपको कभी भी आइडेंटिकल कंपोनेंट सेम डायमेंशन नहीं मिल पाता है। ओके, इफ द वेरिएशंस are within certain limits, all parts of equivalent size will be equally fit for operating in machine and mechanism। Okay, therefore certain variations are recognized and followed in the sizes of the mating parts to give the required fitting। This facilitates to select a random from a large number of parts for an assembly and results in a कंसिडरेबल सेविंग इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि आपकी क्या है आपका यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट को सेव करता है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द साइज ऑफ फिनिश्ड पार्ट विद ड्यू अलाउंसेस फॉर एरर फॉर इंटरचेंजेबल पार्ट्स, इट इज कॉल्ड लिमिट सिस्टम। मैंने बताया ना लिमिट सिस्टम आपका। इट मे बी नोटेड दैट व्हेन एन असेंबली इज मेड ऑफ टू पार्ट्स, द पार्ट विच इंटर्स इनटू द अदर is known as involved surface or shaft for cylinder part। Okay, and the other one which enters is called enveloping surface, जिसे हम लोग क्या कहते हैं होल कहते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में पहले भी मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो ये आपका इंटरचेंजेबिलिटी होती है, जहाँ भी फिर से क्या क्लियर कर रहा हूँ, दोनों ही स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरचेंजेबिलिटी इनके शॉर्ट नोट्स जरूर आती है, ठीक है। कई बार आपका 8 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इंटरचेंजेबिलिटी आपको क्लियर हो गया होगा। जहाँ भी मास प्रोडक्शन आपका करते हैं तो वहाँ पे भी आइडेंटिकल पार्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या है इंटरचेंजेबल जो फिनोमेना है उसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट मीन रैंडमली कोई सभी कंपोनेंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं और जहाँ भी दो पार्ट्स की असेंबली हो रही है वहाँ पे ईजिली आपका असेंबली हो जा रही है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये पार्ट क्या है आपका इंटरचेंजेबल है, ठीक है। फिर से आप एक बार रीडिंग मार लेना, बाकी कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।